Let's begin with 8th illustration of your single entry system. So once again, what we saw in that illustration, that we don't have opening and closing capitals given in the question as it is. So we are supposed to prepare our statement of affairs and we will be calculating opening and closing capital. Because in order to calculate profit or loss, we always need opening and closing capital. So मैं दोनों combined बनाऊंगी भाई. ठीक है, statement of affairs for the year नहीं, as at yes 1st April 2017 and 31st March 2018. This is statement of affairs. As at 1st April 17 and 31st March 18. Let's prepare its format. This is for liabilities and then amount के मैं 2 column बनाती हूँ, जब मैं combined बनाती हूँ. This is for beginning. This is for the end of the year. Liabilities, assets. First April 17, 31st March 18. Let's search for the value of assets and liabilities. So we have plant and machinery in the beginning 20,000, at the end 25,000. लिखिए asset में plant and machinery. I will write P and M. 20,000, 25,000. आगे चलिए, furniture and fitting. Beginning में भी 12, end में भी 12. Done. यहाँ तक clear है सबको? आगे चलो, cash 5,000, 8,000. Come to next, bank 10,000, 18,000. आगे चलो, after bank we have stock 8,000, 12,000. सारे assets ही पहले वो discuss कर रहे हैं. Stock 8,000, 12,000. After stock we have debtors 12,000, 15,000. Creditors 5,000 and 6,000. So creditors are my liabilities. Beginning में 5,000 है, end में 6,000 है. आगे पढ़िए, बाद में इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं कोई और फिगर तो नहीं यहाँ पे एसेट में लिखनी. During the year, Rekha is the name of the business woman. She has withdrawn rupees 6,000 for her private purpose, and she had used rupees 500 worth of stock for her of her business for private purpose. It means की drawings दो तरह की हो गई. 6,000 is in cash and 500 in kind. On 1st October 2017, she sold her personal computer, ठीक है, for 10,000 and paid this into her business bank account. तो आपको नहीं लगता ये additional capital introduced है? अगर कहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेगा तो इसे 10,000 के ऊपर आप 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे, बिकॉज दैट शी इज इंट्रोड्यूसिंग इनटू द बिजनेस ऑन 1st October. You are asked to prepare a statement of P&L. स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने के लिए तो मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए. So firstly I am calculating opening and closing capital. And and a statement of affair as on that date after taking into consideration the following consideration. Question क्यों different है? क्योंकि एक तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर आपने बनानी है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, एक वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ फेयर आपने साल के एंड में बनानी है विद एडजस्टमेंट्स. तो कहने को उसे बोलेंगे रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बट दैट इज नथिंग एल्स, दैट इज सेम एज ऑफ बैलेंस शीट. तो ऐसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आती बट यू कंसिडर ऑल द एडजस्टमेंट्स इन इट, दैट स्टेटमेंट ऑफ फेयर वी कॉल रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड दैट इज सेम एज ऑफ योर बैलेंस शीट. और उसमें आप ओपनिंग कैपिटल लोगे, ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग जैसे फाइनल अकाउंट्स में माइनस क्या करते थे वैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड क्या करते थे वैसे करोगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी आप ऐड करोगे. But you will find that after making all these adjustments, your revised statement of affair will match. उसकी दोनों sides का total क्या होगा? Same. So let's see here.
पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 35, 35 और 32 67. So this is 67,000. Opening capital 5,000 माइनस करके, yes, matching with the book 62,000. So this is my opening capital क्योंकि ये कॉलम 1 में आ रही है. 62,000 is my opening column. Now come to the closing capital. 15 और 12 27, 27 और 18 45, 45 और 20 65, 65 और 90. Yes, matching with the book. 90, 90 में से 6 माइनस किया, 84,000. So you got opening capital as well as closing capital. Now what is left? You have to prepare statement of P&L. So I have a space here. मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ statement of, not of peers. I am firstly preparing statement of profit or loss. So statement of profit or loss always gets start with the help of closing capital. So here is my closing capital. Capital at the end. Then drawings I add, I will add. बाद में adjustments पढ़ते हैं. Capital at the end. 84,000. So drawings दो तरह की है. One was drawings in cash and other was drawings in kind. 6,000 plus 500 दोनों drawings add कर दो. Add drawings 6,000 examiner को बता के आओ plus 500. So it comes to me 6,500. यहाँ तक total बना 90,000 and 500. I call it adjusted capital क्योंकि नहीं adjusted capital नहीं आएगी because additional capital introduced he is giving. Additional capital उसने अपना क्या बेचा था, पर्सनल कंप्यूटर, और वो 10,000 उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया. सो दैट 10,000 इज योर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दैट वी आर गोइंग टू डिडक्ट लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दैट इज 10,000. तो ये माइनस करके जो आपके पास कैपिटल आई, दिस इज व्हाट वी कॉल एडजस्टेड कैपिटल. Adjusted capital we always compare with the opening capital and that is given in the question. Rather we calculated it, which comes to us 62,000. अब की बार उसने आपके बुक में लिखा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बट आई विल कॉल इट ट्रेडिंग प्रॉफिट. 0058. 18,500 is our trading profit. Now we will be reading the adjustments and all adjustments we will be deducting, right? So let's read all the adjustments first. Yes, क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी है, लेट्स सी. 8th illustration we are doing students. Yes, interest on capital कहता 5% क्रिएट करो, इंटरेस्ट ऑन कैश ड्रॉइंग्स, और कहता ऑन एन एवरेज 6 महीने का लगाना. कैश ड्रॉइंग्स कितनी है, 6,000. यू नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा. ये बात याद रखना, पहले माइनस वाले सारे एक्सपेंसेस ढूंढ लेते हैं, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले ऐड कर लो. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 6,000 है. 6,000 के ऊपर 10% पूरे साल का निकालती तो 600 बनता. हम लोगों ने क्या करना है, 6 महीने का निकालना है. वाई, ये रूल रहता है मेरे अकाउंट्स का, व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट बीइंग गिवन, वी जस्ट अज्यूम दैट द पर्सन माइट हैव विड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ईयर. तो मिडल ऑफ द ईयर है तो साल में 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगाएंगे. सो दैट्स व्हाई ही एडेड, बिकॉज इट इज आवर इनकम. एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 300. यहां तक आपका टोटल बना 18,800. अब सारे वो एक्सपेंसेस ढूंढते हैं विच वी कॉल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज पर आवर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट हम लोग इसकी यहाँ पे करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल. ही सेज इट इज 5%. सो 62,000 का 5%, जब मैं 10% लगाती तो 6,200 बनता. 5% है तो 3,100. ये तो पूरे साल का लगा. एक एडिशनल कैपिटल वो लेके आया था जब उसने अपना, यहाँ पे बोर्ड देखो, 3,100. ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,100 आया जो ओपनिंग कैपिटल पे है. एक 10,000 वो बिजनेस में और लेके आया था. 10,000 का मैंने 5% लगाया तो 500 बना. लेकिन he brought that capital on 1st October into the business, so I will be calculating it for 6 months. So that's why 3,100 ये हुआ और 500 का हाफ किया तो 250 वो हुआ. इट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 3,350 आपकी बुक में उसने बताया हुआ है. 3,350 is your interest on capital. So I am deducting here interest on capital 3,350. लिखोगे आप लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,350. So इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो गया. आगे चलिए, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है.
और ये मान के चलना जो प्लांट एंड मशीनरी की एडिशन है वो 1 अक्टूबर को हुई है। अगेन सी द टॉप ऑफ द बोर्ड। मैंने इंटेंशनली ये इरेज नहीं किया था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कंपेयर द फिगर्स गिवन इन द इक्वेशन. You know, in the beginning, your plant and machinery is of 20,000 and at the end it becomes 25,000. So I am doubtful कि मैं इस पे लगाऊं depreciation कि इस पे लगाऊं. उसने सारे doubts clear कर दिए. He says 5,000 की मशीनरी बड़ी है. ये मान के चलना जो नई मशीन खरीदी है वो 1 अक्टूबर को खरीदी है. इट मीन्स कि ओपनिंग के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे और जो नया खरीदा है 5,000 उसके ऊपर 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाओगे. एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही इज टॉकिंग अबाउट 10%. 20,000 का 10% लगाया तो 2,000 बना स्टूडेंट्स. बाकी रह गया 5,000. 5,000 का 10% लगाया तो 500 बना. लेकिन मैंने 6 महीनों का लगाना है क्योंकि उसने बोला है द न्यू मशीन हैज बीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर. So that is 250. आप चेक करो अपनी बुक में 2250 will be the depreciation on plant and machinery. बिल्कुल ठीक है. 2250 will be the depreciation on plant and machinery. So that I am writing here after interest on capital. उसके बाद कहता है फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है. फर्नीचर के बारे में डाउटफुल हम है ही नहीं बिकॉज ओपनिंग फर्नीचर इज ऑल्सो 12,000, क्लोजिंग फर्नीचर इज ऑल्सो 12,000, राइट. और फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 5%. 12,000 का 5% 600 पूरे साल का लगाया. आप साथ में वर्डिंग लिखते जाना. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. यस, ये भी सोचने वाली बात है. ही सेज जो 31 मार्च 18 का स्टॉक है ये वाला 12,000 दैट इज ओवर वैल्यूड बाय 1,000. जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है स्टूडेंट्स तो हमारा जीपी बढ़ जाता है. फाइनल अकाउंट की तरह सोचना. जीपी बढ़ गया हुआ है, आपने मेरे को लगता है जीपी को कम करना है. ही माइट हैव डिडक्टेड इट. यस, ओवर वैल्यूएशन. सो स्टॉक के बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ चुका होता है. यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ. बाय मिस्टेक आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया. ठीक है, स्टॉक के बढ़ने से क्या हो जाता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है. आपने उसे क्या करना है? कम. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,000 दैट आल्सो यू विल बी डिडक्टिंग. आगे मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स आर 15,000 क्लोजिंग के. क्लोजिंग के 5% जब प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो 750 आएगा. यस, ही कैलकुलेटेड इट 750. सो दिस इज 750. You will add up all the adjustments. You will deduct them from your trading profit, and which is in front of you 18,800. You will be having your net profit, right? Then he said prepare revised statement of affair. तो आपने revised statement of affair में closing balance लेने हैं. अपनी बुक देखते जाओ साथ में. जैसे प्लांट एंड मशीनरी 25,000 लिया लेकिन यहीं पे डेप्रिसिएशन उसकी माइनस कर देनी है 2,250. सिमिलरली आपने फर्नीचर 12,000 लेना है लेकिन 600 उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना है. जिसके साथ एडजस्टमेंट है वो आपने एडजस्टमेंट माइनस करनी है. यस, कैश सेम, नो चेंज. बैंक 18,000 नो चेंज. स्टॉक ओवर वैल्यूएशन था तो 1,000 आपने क्या करना है? कम. देखो 11,000 का स्टॉक दिखाया ना. यू हैव टू ब्रिंग इट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ना मैंने स्टॉक की कभी अंडर वैल्यूएशन शो करनी है, ना मैंने कभी ओवर वैल्यूएशन. जितने का है मेरे को उतना ही शो करना है. देन what he did on your liability part, creditors will remain same, that is 6,000. capital 62,000 लेंगे. ठीक है, उसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे एंड ड्राइंग्स आर 6,500. उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों ने कैलकुलेट करी हुई है यहाँ पे. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? आई थिंक 600 था. वो हम लोग माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें ऐड करेंगे और जितना आपका प्रॉफिट आएगा वो भी बीच में ऐड करोगे. ठीक. So after doing all these adjustments, your capital is 79,400. You will see both the sides of this statement of affair will match because it is same as of balance sheet. We are making every adjustment in it. ठीक है, so that's why this statement of affair is different from the earlier statement of affair. ठीक. तो इस तरह का full fledged अगर क्वेश्चन आएगा तो he can run like that way. हो सकता है कि वो क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल खुद ब खुद आपको दे दे. आप क्लोजिंग कैपिटल खुद निकालोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, और अगर वो रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पूछता है तो आपने वो भी बनानी है. सो दिस स्टेटमेंट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. डन. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? 9th is solved in your book. 9th illustration you can do yourself. 9th follow up you can try yourself. I am going to your back exercise. Monday or hard Tuesday, because Monday we have 2 periods. Yes, only Monday, one more day we will be using for the completion of this chapter. Conversion method is not a part of your syllabus. वो छोड़ दीजिए सारे pages.
सीधा और लेंथी क्वेश्चंस पे। यस, 9th क्वेश्चन करें बैक एक्सरसाइज। 9th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज शिव गुप्ता हैड, चलो जी ये करते हैं। एवरीबडी विल सॉल्व द क्वेश्चन विद मी। अगेन वी नीड टू प्रिपेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेट्स प्रिपेयर दैट 9th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज। इट्स ऑन पेज नंबर 18.45। 18.45 पेज नंबर पे आ जाओ। Statement of affairs, again I will be preparing for 2 years. The opening statement of affairs will give me the amount of my opening capital. Closing statement of affairs will give me the amount of my closing capital. Done? Let's prepare. This is for liability. This is for opening amount. This is for closing amount. Done. Then we have asset part here. Opening amount, closing amount. This is for assets. Here check करिए 9th question. That is 31st March 2016 and 31st March 2017. लिखिए year फिर 31st March, यहाँ पे भी 16 कर दीजिए। 31st March 16 and 31st March 17. 16 will be your opening and 17 will be your closing. Done? So everything is visible, I think. This is S for assets. Done? 31st March 16, 31st March 17. This is for liabilities. Chaliye, let's begin. What he did. Shiv Gupta had not kept his books on double entry system. It is quite obvious the question is of single entry system. And ask you to prepare a statement showing his profit or loss or balance sheet. Balance sheet का मतलब कुछ भी नहीं है, revised statement of affair है। Means balance sheet में आपने सारी adjustments क्या करनी है, carry forward करनी है, और आपने opening capital लेके उसमें से drawings minus करनी है, additional capital add करनी है, इंटरेस्ट कैपिटल जो फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, नेट प्रॉफिट आपने ऐड करना है, अगर लॉस है तो वो माइनस करना है। चलो जी पहले ओपनिंग आइटम्स डालें। वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट 4500, पहले सारी यही डाल दो। अभी मेरे को क्लोजिंग का नहीं पता क्योंकि उसने साइमल्टेनियसली नहीं दिया। स्टॉक डाल दीजिए 10,000, डेटर्स डाल दीजिए 9300, दिस इज 00 9300, फर्नीचर डाल दो वेरी स्मॉल अमाउंट 960, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,900, टूल्स एंड इक्विपमेंट 700। आगे पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर शिव गुप्ता ड्रॉइंग, ये मेरे को स्टेटमेंट ऑफ P&L में चाहिए। 2000 इसने 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट खरीदी थी अपनी पर्सनल सेविंग में, अब इसे उसने क्या मान लिया है, बिजनेस एसेट। ठीक है, तो इट मींस कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, इसे हम नई बैलेंस शीट में मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट मानेंगे विच इज ट्रीटेड एज बिजनेस एसेट। ओके चलो क्लोजिंग बैलेंस लिखें। बैंक का बैलेंस उसने नहीं दे रखा, इट मींस कि पहले साल अगर बैंक ओवरड्राफ्ट था तो इस साल पॉजिटिव बैलेंस है। ओपनिंग कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग कितना है 1000, सो आई रोट इट, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। देन आई हैव सन्ड्री डेटर्स, वो मैं पहले से ही बना चुकी हूँ। सन्ड्री डेटर्स कितने हो गए 10,925। देन आई हैव स्टॉक, मेरी फर्स्ट आइटम पहले 10,000 थी अब 15,000 हो गई। फर्नीचर 780, फर्नीचर कम हुआ भाई 960 से 780, हो सकता है डेप्रिसिएशन लगी हो सकता हमने बेचा हो। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 700, पहले भी 700 है अब भी 700 है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,300, earlier it was 10,900. No depreciation or reserve is necessary except tools and implements should be written off by 20%। और किसी पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, टूल्स और इम्प्लीमेंट्स पे 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 140। ठीक है, एक मेरे को इन्वेस्टमेंट का डिस्कस करना है कि इन्वेस्टमेंट को क्लोजिंग में हम एसेट दिखाएंगे। लेट्स सी, पहले ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस निकालो। यस
इन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले ये देखें टोटल 93 प्लस 7 10,000 20,000 20,960 20,960 कितना माइनस करना मैंने 14 15,400 065 दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। इसके साथ लिखिए कैपिटल and write BF with it, which signifies it is a balancing figure 5560. So it is 20,960. Let's do the total of your current year. 15 और 10 25, 25 और 1 26, 27,400, 27,480 और 925 बीच में ऐड करना है 5 10 और दिस इज 13 14 हो गया 28,405 28,405 ठीक है जी 28,000। इन्वेस्टमेंट को ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मानेगा क्योंकि 2,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको इसने बिजनेस एसेट मान लिया। इट मींस कि दैट इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। दिखाने को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था बट ही जस्ट स्किप्ड इट। अगर यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं ना दिखा सकते एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ही मानो। तो ये आपका टोटल आया 28,405 डन। 28,405 में से 14,300 माइनस करिए। दिस इज 5 दिस इज 0 दिस इज 1 this is 14 14,105 is our closing capital। करे क्वेश्चन आगे। यहाँ पे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस P और L। कैपिटल एट द एंड is always our beginning point। 14,105 add drawings। ड्रॉइंग्स कितनी है स्टूडेंट्स 1,600 ऐड करिए 50715 माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड एडिशनल कैपिटल इज 2,000 50713 डन। दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल इज टू बी कंपेयर्ड विद द ओपनिंग कैपिटल 5560। दिस इज व्हाट 5 this is 4 this is 1 this is 8 8145 माइनस डेप्रिसिएशन एक ही चीज पे लगनी है दैट इज 140 डेप्रिसिएशन लगा दीजिए ऑन टूल्स सी द बॉटम ऑफ द बोर्ड। 8145 में से 140 माइनस किया इट विल कम टू अस 5008 8,005 रुपीज। आंसर चेक करो इज योर प्रॉफिट। So उसके बाद ही ask क्या बैलेंस शीट बनाओ। In order to prepare the balance sheet, what we are going to do, we will be taking the closing statement of affair into our mind. Stock will remain as it is, debtors will remain as it is, furniture will remain as it is 780. इधर 700 में से 140 माइनस कर देना, ठीक है, and your bank balance will also remain same. Hereby बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं लिखना, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, कैपिटल दिस वी विल टेक और इस कैपिटल में से 1,600 ड्राइंग्स क्या करना माइनस करना, 2,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या करना ऐड करना और 8,005 रुपीज प्रॉफिट ऐड करना। What you will see the total sides or both the sides of your balance sheet will get match। So ये भी एक तरह से फाइनल अकाउंट की तरह हिंट है कि आपकी दोनों साइड्स अगर मैच हो रही हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक किया है आपने, ठीक है। सो लाइक दैट वे यू विल बी प्रोसीडिंग हियर। डन। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है यू आर फ्री टू आस्क। Any doubt to anyone? You can ask. Yes, students. Do you want to ask anything? हाँ हर्षिका मैम, इंटरेस्ट ऑन कैश ड्राइंग ऐड होगा रिवाइज स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड थोड़ी ना होना, माइनस होना। इफ ड्राइंग्स आर टू बी डिडक्टेड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज आल्सो टू बी डिडक्टेड इन अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फेयर। ठीक है हर्षिका, आर यू लिसनिंग? ड्राइंग्स आर टू बी डिडक्टेड, जो किया करते थे फाइनल अकाउंट में वही करना है, ठीक। हाँ ठीक है, गॉट इट, डन। एनी अदर डाउट टू एनीवन? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, रिवर्स ट्रीटमेंट है दोनों की, ठीक है।